हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं मस्तंवर एंड we studies about the haloalkanes and haloarenes. In the previous video, we finally completed the general method of preparation of alkyl halides and aryl halides. Yes, जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन से कैसे सिंथेसिस कर रहे हैं फ्रॉम silver salt of carboxylic acids, and most and important topics we consider in the previous videos: preparation of haloarenes through aniline. Very important points for the Weaver boards and also for the other competitive exams, because related to these points questions asking in every chapters. Almost we consider first four chapters of organic chemistry. So in this four chapters किसी न किसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन जो है वहाँ से उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलता है. यस, तो सबसे फर्स्ट हमने जो पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का. आफ्टर देन वी स्टार्ट IUPAC नेमिंग, क्लासिफिकेशन एंड आफ्टर देन वी स्टडीज अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन. Yes, so now we consider chemical properties of haloalkanes and haloarenes. So first we consider chemical properties of haloalkanes. Yes, कोई भी चीज़ है इसको पहले तो प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं. बनाने के बाद हम उसका क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं. दैट मीन्स वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस टाइप की शो करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम क्या कंसिडर करते हैं, किस टाइप की रिएक्शंस कंसिडर करते हैं, उसका अपन कंसिडर करते हैं यहाँ पे. यस, सो लेट्स गो स्टार्ट दिस चैप्टर. So chemical properties of haloalkanes. So mostly haloalkanes are show four types of chemical properties or chemical reactions. Chemical properties that means chemical reaction. वो किस किस टाइप की जो है chemical reaction शो कर सकता है. यस, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे haloarenes होते हैं, haloalkanes होते हैं, क्या करते हैं स्पेशली इनकी जो मोस्ट कॉमन जो होती है वो फोर टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होती है. फोर टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सब्स्टिट्यूशन में कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर शो बाय haloarenes. Types of chemical reactions. Chemical reactions are shown by haloalkanes. Which are the following? कौन सी फोर टाइप्स की? तो फर्स्ट वन ले रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Second, we consider reaction with metals. Third, we consider elimination reactions. And fourth is reduction reaction. Yes, so mainly these four types of reactions are shown by haloalkanes. Nucleophilic substitution reaction, reaction with metals, elimination reactions, and reduction of haloalkanes, that is reduction reactions. Yes, so now we consider first points, nucleophilic substitution reactions.
nucleophilic substitution reactions. Yes, nucleophilic substitution reactions. You already studied about the substitution reaction, electrophilic, nucleophilic, free radicals, etc. in the class 11th. Yes, in the previous year. But here we also deeply studied and explain about this such types of reaction. What are nucleophiles? Yes, and how can they substitute, show the substitution reactions? First, we consider here haloalkanes. If we consider bond nature of a haloalkanes, this is halogen group and this is carbon group. We know halogen is a more electronegative as compared to carbon atoms. Due to this reason, these covalent bonded electrons are attracted, more attracted or partially shifting toward the halogen. Due to these reasons, partially negative charge is created, arises on the halogen atoms, and these electrons are far from the carbon atoms. Due to these reasons, on the carbon atoms, electrons are deficient. So due to these reasons, partially positive charge is created on halogen atoms. Yes, that means we can say carbon and halogen atoms is a polar bonds. Atom is a polar molecules or such types of bond is a polar in nature. Yes, तो बॉन्ड में क्या होती है, पोलैरिटी क्रिएट होती है. पोलैरिटी क्रिएट होने का रीजन क्या होता है, बोथ एलिमेंट्स हैव डिफर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. ड्यू टू दिस रीजंस इलेक्ट्रॉन्स आर पार्शियली शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को उसको क्या करा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी पोलैरिटी क्रिएट होती है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है. अब हम जो स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है यूजली इसके लिए NU माइनस साइन लेते हैं. न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा इसमें. यस, और एक चीज़ हमें लर्न रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. कार्बन है, यहाँ पे कार्बन जो होता है कैसा होता है, टेट्रावैलेंट कार्बन होता है. कार्बन की स्ट्रक्चर आपको लर्न रखनी है. टेट्रावैलेंट जो होती है कार्बन की किस फॉर्म में होती है, कैसे होती है, या फिर इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं. ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हैलोजन ग्रुप है, इस हैलोजन ग्रुप को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है. यस, सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह खुद आ जाता है. सो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन को क्या करता है, इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया. यस, अब सब्स्टिट्यूट करना है. न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होता है, अटैक होता है, किस साइड से होता है, क्या होता है, यूजुअली जो एक बेसिक जनरल पर इस फॉर्म में लिखते हैं. इसको शो करने से पहले हम बिफोर क्या करते हैं, कार्बन है, कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं. वी नो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंट दैट मीन्स कार्बन हैज 4 वैलेंसीज. यस, कार्बन हैज 4 वैलेंसीज दैट मीन्स 4 बॉन्डेड. आउट ऑफ दिस 4 बॉन्डेड कार्बन एटम्स, 2 कार्बन्स, 2 bonds or 2 atoms are lie in the same plane. कार्बन की टेट्रावैलेंसीज होती है, 4 बॉन्ड जो अटैच होते हैं, इसमें जो 2 बॉन्ड होते हैं क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं. एंड टेट्रावैलेंसी कैसे, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक बॉन्ड जो होता है क्या होता है, टुवर्ड द ऑब्जर्व. जैसे मैं ऑब्जर्व हूँ तो मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो एक तो मेरी डायरेक्शन होगा. 2 बॉन्ड जो होते हैं, प्लेन पेपर लिया है, प्लेन शीट ली, इस प्लेन सेम प्लेन में होंगे. और जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज होती है इसमें क्या होता है, हम टेट्राहेड्रल के बारे में स्टडी कर रहे हैं. एंड एक जो बॉन्ड जो होता है क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्व. ये वेज फॉर्मूला है, ये डैश लाइन है. आप 11th क्लास में जो है टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है इसके बारे में स्टडी आप कर चुके हो. वॉन बेल एंड ली हाफ ने उसको एक्सप्लेन किया था. लाइक मैं दिस इज कंसिडर एज अ हाइड्रोजन एटम, दिस इज H atoms, and this is a halogen Cl atoms. और
यहाँ पे भी कोई एच एटम पकड़ा है। यस, तो सब्स्टिट्यूशन के केस में ये इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री जो होती है, ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल जो होता है उसकी ज्योमेट्री इस फॉर्म में होती है। ये टू बॉन्ड जो होते हैं कैसे होते हैं, किस साइड में होते हैं, इन द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी एक ही प्लेन में होते हैं। ये जो होता है टुवर्ड द ऑब्जर्व एंड दिस बॉन्ड इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्व। इसको अपन ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझना तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये मैंने क्या लिया है, एक ही प्लेन लिया है और इनके बीच में रेगुलर टेट्राहेड्रल है, उसकी बॉन्ड एंगल जो होता है 109.5 होता है। तो ये सेम प्लेन में है। एक जो बॉन्ड जो होता है क्या होता है, टुवर्ड द ऑब्जर्व, ये मेरे सामने है। यस, तो प्लेन पेपर में थोड़ा सी दिक्कत होती है, इस फॉर्म में। दिस टू बॉन्ड्स आर इन द लाई ऑन सेम प्लेन एंड दिस सेम प्लेन बॉन्ड कंटेनिंग्स आर डिनोटेड बाय सिंपल लाइंस। ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है, मैं जैसे स्टडी कर रहा हूँ तो ऑब्जर्व हूँ, मेरे सामने है, तो इस बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, ये सभी बॉन्ड आपस में जो है 109 का एंगल बनाते हैं। सो दिस बॉन्ड इज डिनोटेड बाय वेज फार्मूला, दिस इज वेज लाइन। एंड फोर्थ वाला जो बॉन्ड जो होता है क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्व, इस फॉर्म है। ये फोर्थ जो होता है बॉन्ड जो होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्व। तो ये इस बॉन्ड्स को, ये जो बॉन्ड, इस बॉन्ड को अपन क्या करते हैं, डैश 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 डैशिश लाइन है उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन सभी एंगल्स को अपन ऐसे क्या करते थे, इनको ज्वाइन कर देते हैं आपस में, यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं, इन साइड्स को सभी को ज्वाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है। तो ये कार्बन जो है, कार्बन की क्या होती है, या कार्बन में जो बेसिकली अपन एल्केन की स्टडी कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स तो स्टडी कर रहे हैं, उसमें हेलो एल्केन से हेलो एल्केन की स्ट्रक्चर ये होती है। यस, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का इसमें क्या होता है, एडिशन हो रहा है, अटैक हो रहा है, इसको भी समझिएगा। दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसका जो एडिशन जो था, अटैक होता है किसके साथ में, इस कार्बन के साथ होगा। वी नो हैलोजन है, हैलोजन के पास में क्या होते हैं, 3 मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस, इस केस में ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर उनके पास में भी क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है फ्रंट साइड से जो है इसका एडिशन नहीं हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये इसका जो बैक पोर्शन है, बैक साइड है, बैक साइड से क्या करता है, इसके साथ अटैच करता है, अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। यस, उस केस में हमें क्या मिलता है, स्ट्रक्चर जो मिलती है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलती है। दिस इज एच, दिस इज एच, और ये जो हो क्या है, एक्स है। न्यूक्लियोफाइल के केस में, अब इस केस में यूजुअली होता क्या है, अगर अपन इस ग्रुप को लेते हैं, इसमें अपन थोड़ा सा और डिटेल से आगे स्टडी करेंगे, जिसमें SN1 और SN2 टाइप की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, यस, उनके बारे में स्टडीज करते हैं। तो ये यूजुअली जो होता है इसका न्यूक्लियोफाइल का, अगर इनमें ग्रुप हम कंसेप्ट इसको कर रहे हैं तो इस फॉर्म में ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, स्ट्रक्चर बनती है। इसमें SN1 और SN2 को लेके हम एक्सप्लेन करेंगे कि इस केस में जो क्या बनता है। यस, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसको सब्स्टिट्यूट करता है, किसको, हैलोजन आइटम को, और सब्स्टिट्यूट करके क्या आता है, जो नया जो प्रोडक्ट जो मिलता है उस प्रोडक्ट को हम किसके अकॉर्डिंग बनता है, क्या बनता है, वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। अब हैलोजन जो होता है, हैलोजन क्या करता है, एक्ट एज ए गुड लिविंग ग्रुप। अगर इस रिएक्शन को हम इसमें वापस अगेन लिखें, इसे हैलोजन, तो हैलोजन जो होता है क्या होता है, दिस इज जो ग्रुप क्या होता है, लेव करता है उस ग्रुप, यहाँ पे लेव करने वाला ग्रुप कौन सा है, ग्रुप लेव का माल होता है, डिपार्ट करने वाला ग्रुप कौन सा है, इस जगह को छोड़ने वाला ग्रुप कौन सा होता है, सॉरी लेव करने वाला ग्रुप। तो ये हैलोजन जो होता है इसको अपन बोलते हैं लिविंग ग्रुप। हैलोजन जो होते हैं एक अच्छे गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, जो क्या करते हैं, ये लिविंग ग्रुप क्या करते हैं, और यहाँ पे ये इनकमिंग ग्रुप जो होता है इसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है
न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? जैसे ही न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इनमें इंटरेक्शन होता है किसमें, न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन में। तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है क्या करता है, कार्बन के साथ जैसे जैसे इसकी क्लोज आता है तो ये क्या करता है, इसको रिपेल करता है। तो इनमें आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन जो होता है, इंटरेक्शन होने की वजह से ये बॉन्ड जो होता है हैलोजन का कंप्लीटली क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। यस, और ये लिविंग ग्रुप जो होता है क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। यूजुअली जो हैलोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। हैलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप। यस, जो ग्रुप जो होता है क्या करता है, यहाँ से इस पोजीशन को छोड़ के चला जाता है, बाहर जाता है, जो रिलीज होता है, रिप्लेस होता है, उस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। यस, किसकी प्रेजेंस में, न्यूक्लियोफाइल है। क्यों होता है, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप है, इसके बीच में क्या होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करता है, उस केस में क्या होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन जो होता है, इस इंटरेक्शन की वजह से लिविंग ग्रुप जो होता है क्या होता है, लीव हो जाता है, उस कार्बन से उसके बीच में बॉन्डिंग जो होती है वीक हो जाती है। यस, और फाइनली ये जो बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल का आना, अटैच होना कार्बन के साथ, और ये जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का क्या होना, यहाँ से लीव होना, यहाँ से डिस्प्लेस होना, दोनों ही क्या होती है, एक साथ साथ होती है। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से बॉन्ड जो होता है ब्रेक डाउन होता है, और फाइनली हमें क्या मिलता है, ये इस फॉर्म में ऐसे प्रोडक्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है इसको इस साइड में लिख रहे हैं या फिर बैक साइड से लिख रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, आगे हम देखेंगे इसकी जो ज्योमेट्री क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, इस पर डिपेंड करता है। यस, तो ये बेसिक जो है इसका इंट्रोडक्शन है, किसका है, न्यूक्लियोफाइल का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, कैसे होते हैं। ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं उसको 11th क्लास में, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल यूजुअली होते क्या है, जो स्पीसीज जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो या फिर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो। नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज होती है, उसको अपन न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। दैट मीन्स बेसिकली अपन कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं कैसे होते हैं। कभी एक बार पॉजिटिव भी हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के फॉर्म में, NH4+ पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स होता है, बट यूजुअली हम जो कंसिडर करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज कंटेनिंग, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एंड न्यूट्रल एटम्स के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज। कौन कौन से होते हैं नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग, सच एज OH-, OR-, SH-, CN-, NC-, NO2-, ONO-। जो भी स्पीसीज होते हैं जिनके पास में भी नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, यस, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अल्कोहल है, ईथर, ये सभी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। यूजुअली हमारे जो सिलेबस में ऑलमोस्ट यही काम आ रहे हैं। NH2-, ये सभी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके साथ में भी नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। यस, उनको इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर होता है उस सेंटर की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ में क्या होता है, अटैच होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज होते हैं, इनको अपन यूजुअली न्यूक्लियोफाइल्स कंसिडर करते हैं। यस, और न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं क्या होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है बट उनके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस, तो नेगेटिव न्यूट्रल जो है न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं क्या होते हैं, उनके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कम से कम तो होना चाहिए लॉन पेयर, ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो चार्ज होता है लॉन पेयर होता है।
यस, यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं किसको कर सकते हैं, सच एज H2 है, H2 के पास में 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH3 होता है, ये भी क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यस, H2S है, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में। अल्कोहल होता है, इनमें भी न्यूक्लियोफाइल्स के फॉर्म हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो ये जनरली जो होते हैं क्या होते हैं, जिनके पास में भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स लाइक एक्ट कर रहे हैं, तो किस केस में उसके उनको हम क्या कंसिडर करते हैं, न्यूक्लियोफाइल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल्स क्या करते हैं, जो कार्बन एटम्स के साथ जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है उस हाइड्रोजन ग्रुप को, जिसको लेविंग ग्रुप बोलते हैं, उस लेविंग ग्रुप को क्या करती है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसकी जगह खुद आ जाते हैं। तो इस वजह से इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन करना पूछे तो कैसे कर सकते हो, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल्स। यस, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप्स होता है क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल्स होता है, हाइड्रोजन ग्रुप को अपन क्या करते हैं, जो ग्रुप रिलीज होता है उस रिलीजिंग ग्रुप को हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप बोलते हैं। लिविंग ग्रुप जो होता है क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू क्या होना, सब्स्टिट्यूट होना, रिप्लेस होना, और उस लिविंग ग्रुप की जगह क्या आना, न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना, ऐड होकर जो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को वी कैन कंसिडर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो सकते हैं और किसके साथ में अटैच करते हैं। यस, इन सभी के पास में जो है या तो नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन सिंपली कह सकते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है लेकिन फिर भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो एक्सेस के फॉर्म में ही कंसिडर कर रहे हैं। यस, या फिर बेसिकली अपन ये कह सकते हैं ऑल लेविस बेसिस होते हैं, वो सभी क्या काम करते हैं, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल्स। यस, कॉमन चीज़ अपन ये कह सकते हैं ऑल लेविस बेसिस आर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल्स। सभी जो लेविस बेसिस होते हैं, सभी लेविस बेस होते हैं जिनके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल के लाइक काम करते हैं। यस, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। अब हम देखते हैं इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है कितने टाइप्स की होती है, क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम क्या करते हैं, फर्दर उसको 2 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है SN1 एंड SN2। यस, SN1 एंड SN2 ये 2 टाइप्स के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके 2 टाइप्स होते हैं, दैट मीन्स ये क्लासीफाइड करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 2 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्टली इसको लिखते हैं SN2, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस,
और आपको जो मिलेगी, अब ये मेरा लिखने का प्रोसेस है, बिकॉज मेरी जो सीक्वेंस या मेरी जो फ्लुएंसी ऐसे ही बन गई है, लेकिन यूजली जो है आपको जो है मिलेगा या बुक में या आप जो जहाँ पे स्टडी करो आपको ये मिल सकता है क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन आपको ये लिखा मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। अब मैं स्टार्ट से इसी को मैं करते आ रहा हूँ, तो मेरा जो है बस यही रूटीन बन गया है। यस, आपको जो बुक में ये मिला या फिर आप और कहीं कोई देख रहे हो, स्टडी करा रहे, सर पढ़ा रहे, तो आपको जो है ये लिखा हुआ मिल सकता है। हाँ, बट मेरा जो है मैं इसी फॉर्म में इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ा सा समझने का आपका है मेनली। यस, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन या बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन अपन कैसे करते हैं। यस, और सेकंड जो होती है क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, ये तो फर्स्ट रिएक्शन है। और सेकंड जो रिएक्शन होती है क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर reactions, and these are denoted by SN1 reaction, SN1 unimolecular and SN2 bimolecular। यस, या फिर इसको मैं जो बोलता हूँ लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो प्रॉपर बुक में आपको मिलेगा, बट मैं जो वर्ड यूज़ लेता हूँ यहाँ पे या आगे जो भी हम पढ़ेंगे, तो मैं बिकॉज मैंने बोला कि सीक्वेंस से मेरी फ्लुएंसी वैसे ही बन चुकी है, मेरे माइंड में वही फीड हो चुका है, तो बार बार वही रिपीट करूँगा या वही वर्ड्स निकलेगा। कौन सा, यूनिमोलिकुलर। मैं इनको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फॉर्म में कंसिडर करता हूँ। यस, तो कंफ्यूज नहीं रखना इस चीज़ में। अब हम जो इनकी स्टडीज़ करेंगे बारी बारी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो है इसकी मैकेनिज्म वगैरह पूछ सकते हैं बोर्ड में, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें भी इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, किस फॉर्म में कैसे बनते हैं, क्या है वो आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूछ सकते हैं। या फिर इनमें SN1 और SN2 जो रिएक्शंस दे रखी है उसमें आपको दी होगी, आपको कहा कि इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। या फिर आपको पूछा कि किसी एक के मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शंस। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, 100 स्टार। दैट मीन्स यहाँ से जो क्वेश्चन जो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है इस चैप्टर से। अब हम जो है इनको क्या करते हैं, स्टेप बाई स्टेप अलग अलग स्टडी करते हैं। So first we consider SN2 को कंसिडर कर रहे हैं। बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड इसको हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं SN2 से, बाईमोलिकुलर। बाईमोलिकुलर का मीनिंग होता है यहाँ पे जो रिएक्शन जो होती है हमने कंसिडर किया, एक टाइपिकल एग्जांपल अपन यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे हैं, किसका मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसका, मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड का ले रहा हूँ। यस, इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्या करते हैं, वी कंसिडर एग्जांपल ऑफ मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड, किसी को भी ले रहा हूँ।
वी कंसिडर, मैं मिथाइल क्लोराइड ले रहा हूँ। मिथाइल क्लोराइड की रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या होती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। 2 बॉन्ड जो होते हैं, 2 कार्बन जो होते हैं, क्या हाइड्रोजन जो होते हैं, क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, और एक एच एटम जो होता है क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड कंसिडर कर रहा हूँ। एक एच होता है क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्व होता है रेगुलर टेट्राहेड्रल में, और जिसको अपन डैश से रिलेट करते हैं कौन होता है, ये बैक साइड होता है, फ्रंट साइड होता है, ये फ्रंट होता है, ये बैक साइड होता है, ये टुवर्ड द ऑब्जर्व होता है, ये अवे द ऑब्जर्व होता है, और ये क्या है इसका, मिथाइल क्लोराइड मैंने लिया है दिस। मिथाइल क्लोराइड को लेके हम इसकी क्या करते हैं, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आपको ये मैकेनिज्म ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। SN1 जो SN2 रिएक्शन जो होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करें, इसके साथ में कोई न्यूक्लियोफाइल है, हैलोजन को अपन क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या करें, इसके साथ में न्यूक्लियोफाइल है, ये NU है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हैलोजन को क्या करता है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है हैलोजन को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूट करता है, क्या बनेगा उस केस में, इसकी स्ट्रक्चर है स्टार्ट की, हम इसको इस फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं, या फिर उसको थोड़ा सा और ये सभी बॉन्ड जो होते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रल में, जो 109 डिग्री पे अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। जब न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसके साथ अटैच होता है, अटैक करता है। कहाँ से करता है, ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से नहीं कर सकता है, बिकॉज क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके साथ में क्लोरीन के पास में 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये भी या तो न्यूट्रल होता है या फिर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज होती है। तो फ्रंट साइड से तो ये क्या करता है, इसके बीच में आपस में रिपल्शन होने की वजह से अटैक नहीं कर सकता, ऐड नहीं हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, ये जो बैक डायरेक्शन जो है, डैश वाला बॉन्ड जो है पीछे से बैक साइड से क्या करेगा, इस स्पीशीज के पास में आएगा। कैसे स्ट्रक्चर बनी देखिएगा, यस और ये ग्रुप है, दिस ग्रुप इज Cl। अब यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है, क्या बन रही है, बहुत ही अनस्टेबल बन रही है। जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है, कार्बन के साथ में अटैच होता है, अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक क्यों करता है, क्योंकि इनके बीच में जो होता है क्या होता है, हमें पता है ये चार्ज होता है, पार्शियली पॉजिटिव और पोलैरिटी क्रिएट होती है। ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। तो पोलर नेचर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल एडिशन करेगा, कहाँ के करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज करने स्पीशीज है, जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन के ऊपर इसका क्या होता है, अटैक होता है। और अटैक कहाँ से करता है, बैक साइड से करता है, फ्रंट साइड से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज फ्रंट साइड में क्या है, हैलोजन ग्रुप अटैच है, और हैलोजन के पास में क्या है, 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड न्यूक्लियोफाइल हैज़ ऑल्सो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू दिस रीजन्स क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। तो ये क्या करता है, बैक साइड से जो है क्या करता है, अटैक करता है। अब बैक साइड से अटैक करने के बाद में यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनती है। एक ऐसी कंडीशन जो होती है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, कार्बन के साथ ऐड होना, और ये हैलोजन जो है लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप का यहाँ से क्या होना, लिव होना, दोनों ही क्या होती है, एक ही साथ होती है, सेम टाइप होती है। इनके बीच में आपस में जब इंटरेक्शन जो होता है, और इंटरेक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस केस में हैलोजन जो होता है क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हैलोजन को टोटली क्या कर देता है, वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, डिसलोकलाइज कर देता है। और ये जो बन रही है, क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है, ये कैसी है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। और पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट जो होती है हाईली अनस्टेबल होती है, बिकॉज कार्बन की हमें पता है वैलेंसी क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है। यहाँ पे 5 वैलेंसी हो रही है, पेंटावैलेंसी बन रही है। तो कार्बन पेंटावैलेंसी नहीं रख सकता है, नहीं बना सकता है। ड्यू टू दिस रीजन दिस पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल।
ये कैसे होती है? हाईली अनस्टेबल होती है। यस, तो हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, ये बहुत ही प्रोसेस होता है, क्या होता है, वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, और उसी टाइम ये क्या होता है, दिस ग्रुप इज हैलोजन ग्रुप जो होता है, लेविंग ग्रुप क्या होता है, यहाँ से कम्प्लीटली डिटैच हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और क्या बना प्रोडक्ट। इधर जगह नहीं, मैं इसको इस पंप बना रहा हूँ। यस, इसी का ही प्रोडक्ट बन रहा है। अब जो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा, क्या मिलेगा, यस दिस इज प्रोडक्ट, और हैलोजन जो यहाँ पे क्या हो गया, Cl जो था वो क्या हो गया, लेव हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, कैसे बन रही है, इस स्ट्रक्चर को कंसिडर करें तो कैसा होता है, सिंपली बेसिकली अपन एक्सप्लेन करें, ये जो स्ट्रक्चर थी इसका जो, इसको अपन अम्ब्रेला के साथ कंपेराइज कर सकते हैं। यस, अम्ब्रेला के साथ इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हैलोजन इस था, तो यहाँ पे इस अम्ब्रेला की जो स्ट्रेंथ होती है, डंडी होती है, इसका ये काम कर रहे हैं। यस, सिंपली कह सकते हैं अम्ब्रेला कैसा है, सीधा है। अब हमने क्या किया, जैसे एक अम्ब्रेला का हम एग्जाम्पल लेके कंसिडर कर रहे हैं, और तेज विंड की वजह से अम्ब्रेला जो होता है क्या होता है, उसका जो फॉल जो होता है क्या होता है, ऊपर उल्टा ऐसे हो जाता है। देखिए हवा तेज होती है, उस केस में आपने देखा होगा अम्ब्रेला जो होता है कैसे अपोजिट साइड में जो है बाहर निकल जाता है, फॉल होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होती है इसकी क्या होगी, ये अम्ब्रेला ऐसा होता है, ये अम्ब्रेला की डंडी है, और ये जो है ऊपर का जो पोर्शन जो होता है क्या करता है, वो तेज विंड की वजह से, विंड स्ट्रीम की वजह से क्या होता है, बाहर की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही है। इस टाइप का जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन प्रोसेस का मीनिंग होता है, यहाँ पे रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्शन जो होती है, इनिशियली रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट में क्या होता है, लेविंग ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, ये लेविंग ग्रुप है। लेविंग ग्रुप कहाँ था, राइट हैंड साइड था। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो ऐड होने के बाद में जो प्रोडक्ट मिला वो कैसा मिला, न्यूक्लियोफाइल अब अटैच होता है किस साइड में होता है, ये तो लेविंग ग्रुप कहाँ था, राइट साइड था, और ये कहाँ से आ गया, अब जो दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट से दिख रहा है। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन का मीनिंग होता है प्रोसेस में प्रोडक्ट जो होता है उसमें जो रिलीजिंग ग्रुप होता है, लेविंग ग्रुप होता है, लेविंग ग्रुप के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियोफाइल है या एडिशनल ग्रुप है, अटैकिंग ग्रुप है, अटैकिंग ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो होता है प्रोडक्ट में, जो लेविंग ग्रुप होता है, ये निकलने वाला ग्रुप ये राइट हैंड साइड था, लेकिन जो सॉरी दिस इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में लेविंग ग्रुप जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कहाँ होता है, राइट हैंड साइड था। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के बाद में जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कहाँ पे मिल रहा है, किस साइड में मिल रहा है, उसके अपोजिट इनिशियली जो था लेविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। इस टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इस टाइप का जो चेंज होता है, इसको अपन बोलते हैं इन्वर्जन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। एक होता है रिटेंशन और एक होता है इन्वर्जन, ध्यान रखिएगा। तो ये इन्वर्जन जो है बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आगे मैं लिखा दूंगा। यस, ये टोटली इसकी क्या है, मैकेनिज्म है, किसकी, SN2 रिएक्शन की। अब SN2 रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या होता है, अगर इसकी अपन काइनेटिक्स को स्टडी करें, इस रिएक्शन की जो काइनेटिक्स होती है, जस्ट ऑर्डर जो इसका होता है क्या होता है, 2 होता है। 2 क्यों कहते हैं, बिकॉज ये रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, देखिएगा, एक तो ये जो अपने जो रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, दूसरी जो किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल पे कैसे डिपेंड करती है, देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो है फ्रंट साइड से, यहाँ से इधर से सामने से नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बैक साइड से आ रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल कितना लिया, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल की जो कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, आपने न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है या पोलर प्रोटिक या एप्रोटिक, उस पर भी डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन की जो काइनेटिक्स होती है, काइनेटिक ऑफ रिएक्शन जो होती है क्या करती है, 2 स्टेप पे डिपेंड करती है। 2 कौन सा, सॉरी 2 रिएक्टेंट स्पीसीज उस पर डिपेंड करती है। कौन सी 2 रिएक्टेंट स्पीसीज, एक तो होता है ये रिएक्टेंट, ये जो है रिएक्टेंट लिया है, दूसरा जो सेकंड अपन ने क्या लिया है, न्यूक्लियोफाइल लिया है, उस पर डिपेंड कर रही है। यस, इस वजह से इसकी जो काइनेटिक्स होती है क्या होती है, 2 ऑर्डर की होती है। ये सब बस थ्योरी में यही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है, एडिशन होता है, कहाँ पे होता है,
बैक साइड से होता है। कहाँ से हो रहा है? बैक साइड से हो रहा है। अब फ्रंट साइड से क्यों नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं हो सकता फ्रंट साइड से? बिकॉज फ्रंट साइड में क्या होता है, हैलोजन ग्रुप अटैच होता है एंड हैलोजन हैज 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियोफाइल आल्सो कंटेन नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर ड्यू टू दिस रीजन। इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। कहाँ से होता है? बैक साइड से होता है। उसके बाद का जो स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनता है क्या बनता है, एक पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो हाईली अनस्टेबल होती है। यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनता है क्या बनता है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर बनती है, वो कैसी होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। बिकॉज कार्बन की जो बैलेंसेस होती है वो 5 नहीं हो सकती है। मैक्सिमम कार्बन जो है क्या करता है, टेट्रावैलेंट रखता है, 4 वैलेंसी रखता है। यस, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से बहुत ही फास्टली ये फास्ट स्टेप होता है। क्विकली ये क्या होता है, हैलोजन जो होता है क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन और क्विकली इंटरेक्शन होने की वजह से ये ग्रुप जो होता है क्या होता है, यहाँ से लिव हो जाता है और लिव होकर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट जो होता है कैसा बनता है, वो इन्वर्जन बनता है। प्रोडक्ट जो होता है क्या कहता है, कैसा बनता है, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। यस, अब नेक्स्ट स्टेप अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कार्बन जो होता है कैसा कार्बन हो सकता है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तो हमने सभी हाइड्रोजन लिए थे, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरे और भी ग्रुप हो सकते हैं। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे इन डिफर ग्रुप को कंसिडर करें, सभी 4 ग्रुप्स को डिफर कंसिडर करें, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिया है, यहाँ पे मैंने कुछ और ले लिया है, और यहाँ पे हमने कुछ और ले लिया है, दूसरा ग्रुप ले लिया है, उस केस में ये कार्बन जो होता है कैसा हो जाता है, कायरल कार्बन हो जाता है, एसिमेट्रिकल कार्बन हो जाता है। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या करता है, इस टाइप के कंपाउंड, इट इज़ नॉट कंपल्सरी ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, बट दिस कंपाउंड्स आर शुड बी ऑप्टिकल एक्टिव। ये ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है मे बी, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं, ये इनकी मेन जो है। और नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कहाँ से होता है, बैक साइड से हो रहा है, फ्रंट साइड से नहीं हो रहा है। उसका कॉज मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, बिकॉज फ्रंट साइड में लविंग ग्रुप होता है, उसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो रिपल्शन होता है, तो बैक साइड से अटैक करेगा। अब बैक साइड से क्या होता है, ये जो ग्रुप जो होते हैं, इन ग्रुप को, ये हमने यहाँ पे जो क्या लिया था, मिथाइल लिया, तो सभी हाइड्रोजन आइटम्स है, स्मॉल ग्रुप है। अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप का मीनिंग होता है बड़े ग्रुप होते हैं, लार्ज साइज के ग्रुप होते हैं। यस, लार्ज साइज के ग्रुप के केस में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जो अटैक कर रहा है, इस न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ जो अटैच होने की, अटैक करने की जो टेंडेंसी होती है क्या होती है, ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से, या ग्रुप जितने बड़े होते हैं ग्रुप की साइज़ बढ़ जाती है, उस केस में इसकी रिएक्टिविटी जो होती है, इसकी रेट जो होती है क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसको कार्बन के साथ अटैच होने के लिए जगह ही नहीं मिलती है, यहाँ तक एंटर होने के लिए, अंदर घुसने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। ये ग्रुप जितना बड़ा होगा, देखिए कैसे मैं इसका समझा रहा हूँ इसको, अभी ग्रुप कैसे इसको इफेक्ट करता है, ठीक है, ये तो आपको लिख देना उसको। ये अपन कंसिडर कर रहे हैं हैलोजन ले रहे हैं, यहाँ पे अपन ने कंसिडर किया दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये हमने क्या लिया है, इधर अपन 3 बल्कि ग्रुप ले रहे हैं। 3 बल्कि ग्रुप का कंसिडर मैंने किया है, जैसे तीनों के तीनों क्या लिया मैंने, मिथाइल ग्रुप ले लिए, तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे तो बहुत सारी जगह, क्योंकि ग्रुप छोटे हैं तो इजीली जो क्या करता है, अटैक कर सकता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, बैक साइड से आएगा, बैक साइड आएगा तो यहाँ पे एंटर कहाँ से करेगा, बस इसकी थोड़ी सी बहुत ही थोड़ी सी जगह बची है, इसके बीच में जो स्पेस है बेसिकली अपन ये कह सकते हैं, जाएगा कहाँ से, बैक साइड से, इधर से यहाँ से जा रहा है, तो ये बस इतनी सी स्पेस है, बहुत ही कम स्पेस है, इसकी जगह क्या है, बहुत ही कम है। बैक साइड से जो अटैक कर रहा है, तो ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हैंडरेस्ट होती ही ज़्यादा हो जाती है। स्टेरिक हैंडरेस्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे ये बाधा ज़्यादा, रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, बैरियर क्रिएट हो रहा है ज़्यादा। ये ग्रुप जो बड़े ग्रुप होते हैं, अब और यहाँ पे ग्रुप की साइज़ बढ़ जाती है, तो इसके लिए बैरियर जो होता है और बढ़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछने के, इस वजह से इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसका, SN2 रिएक्शन का, किसके साथ में, हैलोजन के साथ में, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ में, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 1 डिग्री एल्किल या 0 डिग्री एल्किल, फिर 1 डिग्री एल्किल, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, एंड फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। 0 डिग्री एल्किल हैलाइड्स का मीनिंग होता है मिथाइल, ये मिथाइल हैलाइड्स इसको 0 डिग्री कंसिडर करते हैं, दिस इज 2 डिग्री।
यस दिस इज़ 1 डिग्री, दिस इज़ 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री, ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। हमें क्वेश्चन पूछा कि इनको क्या करना है, SN2 जो रिएक्टिविटीज़ है उस रिएक्टिविटीज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे स्मॉल, सबसे कम स्टेरिक हाइड्रेस कहाँ पे होगी, मिथाइल में। ये तीनों की तीनों हाइड्रोजन स्मॉल ग्रुप है। ये रीजनिंग के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये कोई फास्ट रिएक्शन करता है, इजीली रिएक्शन कर लेता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप और आ गया। अब मिथाइल ग्रुप और आने का मतलब क्या है, यहाँ पे सेकेंड केस में 1 डिग्री में ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बल्कि ग्रुप आ गया यहाँ पे। ये तो स्मॉल ग्रुप है, उस केस में ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ठीक है, कुछ इसके पास स्पेस है। लेकिन यहाँ पे एक और, इस केस में CH3 2 ग्रुप आ गया, 2 बल्कि ग्रुप आ गए, तो ये कार्बन हो गया, यहाँ पे ये हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, या फिर इसको आप इसके यहाँ पे अटैच कर सकते हो, तो स्पेस कम हो जाता है। और 3 बल्कि ग्रुप आते हैं तो स्पेस और भी न्यूक्लियोफाइल को ऐड होने के लिए बहुत ही कम जगह चाहिए होती है, स्पेस या अवेलेबल नहीं होती है, बहुत ही कम स्पेस हो जाता है, तो रिएक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यस, ये इसकी क्या थी, कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन था, इसका रिएक्शन थी। अब हमें क्या करना है, इसमें स्टेप्स लिखनी है, थ्योरी में लिखनी है। ये तो आपको बड़े इसकी मैकेनिज्म पूछी तो उसको डेराइव करना है, समझना है। अब यहाँ पे इसकी थ्योरी कंसिडर करें, इसके पॉइंट्स को कंसिडर करें तो हम क्या क्या करते हैं। हालांकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, अब पॉइंट्स लिख देते हैं। ये जो रिएक्शन जो होती है इसकी क्या होती है, इसका काइनेटिक ऑर्डर जो होता है क्या होता है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जांपल है। पॉइंट के फॉर्म में लिखें, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, दिस रिएक्शन इज फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मीनिंग होता है, हमने क्या लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट हमने कितना लिया है, रिएक्टेंट कैसा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और जो हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है, न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन में डिपेंड करती है। इस फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। रेट जो होती है क्या होती है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, कंसंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट है एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन में रेट जो होती है क्या करती है, डिपेंड करती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसी वजह से इसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है 2 होती है, तभी तो इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाई मॉलिक्यूलर का मीनिंग होता है रिएक्शन चीज की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो, 2 हो। कौन सी 2 मॉलिक्यूलरिटीज, एक तो ये रिएक्टेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रेट को डिटरमाइन करने के लिए या इसकी काइनेटिक को डिटरमाइन करने के लिए। तो 2 सब्सटेंस या 2 रिएक्टेंट स्पीसीज होती है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या करते हैं, रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 होगी। दैट मीन्स इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 2 होती है। बिकॉज रिएक्शन की रेट जो होती है किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। सेकंड, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो क्या बनता है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो हाईली अनस्टेबल होती है। इंटरमीडिएट इज अ फॉर्म पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट जो क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, विच इज हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इसलिए उसको अपन क्या करते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो ओवरऑल हम इसको लिखना चाहे, कहना चाहे तो कि ये कह सकते हैं कि रिएक्शन जो होती है क्या होती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए बनती है, इतनी अनस्टेबल होती है, बस बनी और प्रोडक्ट चेंज होगी, तो इसकी रेट को अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट स्टेप होता है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन जो होती है क्या होती है, सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर कंप्लीटेड इनटू सिंगल स्टेप। ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 होगी, लेकिन ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है।
दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। completed into सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में, स्टेप कह सकते, एक ही स्टेप जिसमें इन्वॉल्व होता है, सिंगल स्टेप में होती है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट जो बनता है कैसा बनता है, इन्वर्जन बनता है। रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट होता है कैसा होता है, इन्वर्ट होता है। तो इन्वर्जन जो होता है प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्ट बनने की वजह को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। उसके अपोजिट साइड्स होते हैं। यस, ये रिएक्शन क्या होती है, प्रोडक्ट कैसा बना, इन्वर्ट बनने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, प्रोडक्ट की नेचर जो होती है कैसे हो सकती है, ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। प्रोडक्ट इज मे बी ऑप्टिकल एक्टिव, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है वो बन सकता है। किस केस में आगे हम पढ़ेंगे, किरेलिटीज़ के फॉर्म में, वो किरेल क्या होता है, किस फॉर्म में कैसे होता है। सो प्रोडक्ट इज मे बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, दैट मीन ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है प्रोडक्ट। एल्किल हैलाइड्स होता है, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर के फॉर्म में कंसिडर करें। टुवर्ड SN2 रिएक्शन, सबसे ज़्यादा अगर मैं रिएक्टिविटी को कंसिडर करूँ तो क्या होता है, डिग्री के अकॉर्डिंग दूसरा है और हैलोजन ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग करते हैं। पहले तो मैं डिग्री के अकॉर्डिंग करूँ तो 0 डिग्री जो होता है सबसे लेस ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यस, 0 डिग्री में क्या होते हैं, लेस स्टेरिक हैंडल्स होते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से करता है। तो डिग्री यहाँ पे इंक्रीज होती है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि स्टेरिक हैंडल्स इंक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल हैलाइड रहेगा, उसके बाद में 1 डिग्री इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एंड आइसोनियो। 3 डिग्री होता है टर्सरी हैलाइड की फॉर्म में, इसको कंसिडर करते हैं। ये इसका क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। और हम पॉइंट को कंसिडर करें तो क्या कर सकते हैं इसमें, एल्किल हैलाइड में अपन क्या करते हैं, जो डिफरेंट सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है अगर हम क्या करते हैं, एक तो हमें दे रखा है CH3Cl और सेकंड दे रखा है CH3I पूछा है, ये दोनों दे रखा है और हमें कहा है कि इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते से विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। यस, तो अपन क्या करते हैं, ये मोर रिएक्टिव होता है। एल्किल आयोडाइड जो है दिस इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू CH3। क्यों मोर रिएक्टिव है, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जो होता है क्या होता है, वीक होता है। तो इजीली हैलोजन जो होता है, इजीली आयोडीन जो होता है क्या होता है, लिव हो जाता है। यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो लेस इसकी जो है क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कह सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। यस, तो ये इसके क्या थे, मेजर जो है मेन पॉइंट्स थे किसके, SN1 और SN2 के। और हम बता सकते हैं SN2 जो है किस केस में हो सकती है, तो एक पोलर कंडीशन भी आपको रखना है।
किस कंडीशन में SN1 होगी, किस केस में SN2 होगी। देखिए आगे अपन देखते हैं, जो 2 डिग्री होता है तो 2 डिग्री में SN1 और SN2 जो दोनों प्रिफर्ड होती है, दोनों ही होती है। अब हम किसको कंसिडर करेंगे कि SN1 होगी या SN2 होगी। तो यहाँ पे दूसरा जो होता है कंडीशन पर ये भी लिख सकते हैं, SN2 कब हो सकती है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आपने या सॉल्वेंट आपने लिया है, कैसा है सॉल्यूशन की जगह मैं सॉल्वेंट लिख सकता हूँ। सॉल्वेंट कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, SN2 रिएक्शन को प्रोवाइड करता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का बेसिकली मीनिंग कैसा होता है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें क्या होते हैं, एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो। एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जो हाइड्रोजन क्या होता है डायरेक्टली OH के साथ जुड़ा हो, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। बट पोलर एप्रोटिक में क्या होता है, इस टाइप से हाइड्रोजन नहीं होता है। यस, इस टाइप से हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक हाइड्रोजन, उनको हम बोलते हैं। जरूर नहीं कि यहाँ पे ये हो, देखिए फ्लोरीन है उसके साथ में भी हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ में भी हो सकता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है, उस हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन। यस, और पोलर एप्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें क्या होता है, ये एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन जो H जो होता है क्या होता है, एब्सेंस होता है। ऐसे सॉल्वेंट जिसमें क्या होता है एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंस होते हैं, उनको अपन बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है, मीडियम दे रखा है, तो डेफिनेटली उसमें कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 मैग्नीज होगी। SN2 रिएक्शन जो होती है एग्जाम्पल के फॉर्म में इसमें कंसिडर करते हैं, जैसे पिरिडीन होता है। पिरिडीन इसका एग्जाम्पल है। पिरिडीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये पिरिडीन होता है। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। यस, तो ये कैसा सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। बेंजीन को कंसिडर करते हैं, ईथर को कंसिडर करते हैं, क्लोरोफॉर्म को कंसिडर करते हैं। यस, ये सभी सॉल्वेंट होते हैं, कैसे होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होगी। यस, तो ये हमने क्या पढ़ा है, इसकी मैकेनिज्म पढ़ी है किसकी, SN2 रिएक्शन की। यस, आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इस फॉर्म में, जैसे अभी मैंने बताया था, एक आपको कहा है कि दिस, और सेकंड आपको दे रखा है इसमें ये कंपाउंड दे रखा है। अब इनमें आपको कहा है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेज विच वन इज सो मोर SN2 रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड है SN2 रिएक्शन ज़्यादा शो करेगा। तो मैंने देखिए क्या बताया था, डिग्री के अकॉर्डिंग बताया था। सबसे ज़्यादा जो कौन करता है 0 डिग्री, उसके बाद है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे ये एल्किल हैलाइड कैसा है, ये 1 डिग्री है। ये कैसा है, 1 डिग्री। ये अल्फा कार्बन, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री। लेकिन ये कैसा है एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। बेंजीन रिंग के साथ में ये दिस कार्बन इज कंसिडर अल्फा कार्बन, जिसके साथ 2 मोर कार्बन आर अटैच। दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। अब हमें कहा कि इसको कारण मोर कौन रिएक्टिव होता है टुवर्ड द SN2 रिएक्शंस, तो दिस इज फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव। वाई, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, लेस स्टेरिक हैंडल्स, 2 डिग्री में मोर स्टेरिक हैंडल्स। यस, अगर अपन डिग्री को सेम रखते हैं, ये 1 डिग्री है। सेकंड मैं एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज 1 डिग्री एल्किल है, और सेकंड में ले रहा हूँ दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री एल्किल है। अब इस केस में आपको कहा है कि दोनों ही डिग्री किस सेम है दोनों की, उस केस में मोर रिएक्टिव कौन है, दिस इज कंसिडर फर्स्ट और दिस इज सेकंड। इस केस में जो सेकंड जो होता है ये मोर रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप जो होता है साइक्लिक रिंग जो है, साइक्लोहेक्सेन है, रिंग की साइज क्या है, बड़ी है। ये ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप है। ये बल्कि ग्रुप होता है, ग्रुप जितना बड़ा होता है, ग्रुप की साइज जितनी बड़ी होती है, स्टेरिक हैंडल्स होती है, न्यूक्लियोफाइल के लिए उतनी ही ज़्यादा रिकॉर्ड पैदा करता है। तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच इसको हैलोजन ग्रुप को
रिपेल नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो इतनी ज़्यादा रिएक्शन जो होती है क्या होती है, स्लो होती है। यस, तो ये मॉडरेटिव होता है। इस टाइप से आपको जो है क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। यस, बहुत ही हमने ईजी और बहुत ही स्लो स्टडी करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। यस, बाकी 10 मिनट में ये टॉपिक हो जाता था, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं, लेकिन हमने हर पॉइंट को, हर बात को एक्सप्लेनेशन किया है। कहीं पे भी आपके जो है क्वेश्चन जो पूछने की नौबत नहीं आ रही है। यस, बिकॉज डाउट आपके जो माइंड में जैसे डाउट उड़ते हैं तो उससे पहले ही आपका जो सॉल्यूशन जो है, बिकॉज मुझे पता है कि आप जो है मुझे क्या क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, किससे कर सकते हो, तो मैं ऑलरेडी जो है हर क्वेश्चन जो आपका जो बनता है, आपके माइंड में जो क्वेश्चन उठता है, उस क्वेश्चन का जो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।